ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅ ਲਾਈਨ ਕੁਡ ਬੀ ਆਈਦਰ ਟੇਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਔਰ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸੀਕੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਔਰ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਨਾਈਦਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਨॉर टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, कुछ भी नहीं होएगी, या टेंजेंट होएगी या सीकेंट होएगी। सेम हैपन्स इन द केस ऑफ पैराबोला, अ लाइन कुड बी टेंजेंट टू पैराबोला, इट कुड बी like passing outside the parabola, या it could be intersecting parabola at two distinct points। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो let there be a parabola y square is equals to 4ax and let there be the line y is equals to mx plus c। सुनो, ठीक है, let there be the parabola y square equals to 4ax and there be the line y equals to mx plus c। अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या दोनों को सॉल्व करना होवे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता करना पवे कि what type of interaction is there between this line and parabola। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, y minus c upon m। तो use this value of x in this parabola, so y square is equals to 4a and what is x, y minus c upon m। ठीक है, यही हो जाएगा। इन्हों अगर आप थोड़ा जा सॉर्ट करिए तो एम वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay माइनस 4ac, तो एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन y, ये की बन गया क्वाड्रेटिक इन y। इस क्वाड्रेटिक इन y का अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होएगा तो मतलब there will be two distinct roots। if it is equals to 0 only one root will be there and if it is less than 0 no real root will be there and accordingly line की होएगी secant होएगी या tangent होएगी या की होएगी neither intersecting nor tangent। ठीक है, so this is a quadratic, there could be three conditions, d greater than 0, d equals to 0, d less than 0। if d is equals to 0, one real root, this implies line is tangent। if d is greater than 0, two real roots, this implies line intersect parabola at two distinct points। ठीक है, line intersect parabola at two points। ठीक है, d less than 0 means no real root, this implies no intersection। ठीक है, now what is d in this case, d की होता अपने को की हो रहा है, d is b square minus 4ac, b square minus 4ac, what is b square, 16a square minus 4m into 4ac। आवाज नहीं है, ठीक है, 16a square minus 4m into 4ac, तो 16a square minus 16mac, तो 16a कॉमन आ रहा, a minus m into c। let the condition be of tangent, tangent ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ d ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ 0, तो let that be equals to 0, तो a is equals to कितना आ गया mc, या c is equals to a upon m। so this becomes the condition of tangency, means a line y equals to mx plus c will be tangent to y square is equals to 4ax if and only if c is equals to a upon m। ठीक है, ये कंडीशन बन जाती है अपने को, एंड इट विल बी नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टेंजेंट, a minus mc greater than 0 and a minus mc less than 0। in this case it will be intersecting and in this case it will not be intersecting। ठीक है, सिंपल। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਲਈ, that this is the condition। ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, y is equals to mx plus c will be a tangent to circle if c is equals to a into under root of 1 plus m square and in this case it is equals to c is equals to a upon m। ठीक है, लिख लो फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की है दिस। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾइनमेंट हो जाए। ठीक है, ये चीज़ तो कॉमन है, हर एक चीज़ के लिए कॉमन है, बस कंडीशन ये याद रह जाए तो बहुत वधिया गल है। दैट इफ d इज ग्रेटर देन 0 दैट विल बी a secant, if it is equals to 0 that will be tangent, if it is less than 0 neither secant nor tangent। ठीक है, चलिए आगे। Substituting value of c in y equals to mx plus c, equation of tangent of slope m की होएगी y is equals to mx plus a upon c। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕੋਈ कि there is a parabola y square equals to 4ax, let us suppose मैंने क्वेश्चन आ गया there is y square is equals to 8x, find equation of tangent of slope 1 by 2, find the equation of tangent to this parabola of the slope 1 by 2, so that should be of the form y is equals to x by 2 plus c। यही होएगी, अगर अपन को स्लोप गिवन होवे तो स्लोप की होएगी, लाइन की होएगी y is equals to x by 2 plus c, and if this line is tangent to this parabola तो c should be equals to a upon m, m की वैल्यू कितनी है 1 by 2, and what is a in this case, that is equals to 2, so that becomes equals to 4, so y is equals to x by 2 plus 4 will be our answer। ठीक है, सिंपल याद रह जाएगी कंडीशन तो क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा, अपन कोई ज़्यादा सोचने की लोड़ ही नहीं पैनी। ओके, इन केस अगर मैं भुल जाता ये चीज़ मैनू ना याद आती फिर मैं की करदा, अगर ये चीज़ मैं भुल जा तो की करना, स्लोप हमेशा की होंदी है जदों स्लोप गिवन होवे उदों चीज़ याद रखो कि स्लोप इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स। स्लोप की होंदी है हमेशा, ये तो चीज़ चलो याद कर लोगे तो बहुत वधिया गल है, अगर नहीं याद होंदी तो याद रखो स्लोप जी गिवन है मैनू दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मैं उन्होंने डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 8, तो y डैश इज इक्वल्स टू 4 अपॉन y, यही हो जाएगा ना। नाउ इट इज गिवन टू बी 1 अपॉन 2, तो y कितना आ गया 8, अगर y 8 है तो x will be equals to 8, x will also be equals to 8, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ पॉइंट आ गया, स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन विल बी y minus 8 upon x minus 8 equals to 1 upon 2। दिस could also be the method जेकर ਆਪਾਂ ਇਹ चीज़ भुल जाते हैं, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ याद रहना चाहिए कि equation of tangent whose slope is m will be equals to y is equals to mx plus a upon m। ठीक है, अदरवाइज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ऑप्शन हैगी है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। नाउ फर्दर, ठीक है, ये हो गया। देखो इधर
y is equals to mx plus a upon m is tangent to y square is equals to 4ax, ठीक है। y is equals to mx plus a upon m is tangent to y square equals to 4ax। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ point of contact, find point of contact कि किहड़े point ते वो वाली लाइन की बन रही है, टेंजेंट बन रही है, ठीक है। point of contact फाइंड आउट करने लिए आप आही चीज़ कर देंगे, ठीक है। यही चीज़ करने लिए की होएगा y is equals to mx plus a upon m, ਇਹਦੀ slope कितनी है is equals to m, y square equals to 4ax ਨੂੰ दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, y square ਦਾ डेरिवेटिव कितना ਹੁੰਦਾ 2y into y dash is equals to 4a, तो y dash is equals to 4a upon 2y, तो that will be 2a upon y, ठीक है। 2a upon y। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट फाइंड आउट करना। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ ਇਹ टेंजेंट बनी है, मतलब ये कुछ इवें ਦਾ हो ਰਿਹਾ ना, ये वाला पैराबोला ये वाली टेंजेंट है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करके दिखाओ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ dy upon dx पता and we know that dy upon dx is equals to m, तो for this y will be equals to 2a upon m, मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2a upon m, and if its y is 2a upon m what will be x, y square equals to 4ax, y square कितना आ जाएगा 4a square upon m square into 4a is equals to x, तो a ਦੇ ਨਾਲ a कैंसिल, 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 कैंसिल, तो x will be equals to a upon m square, so coordinates of this point will be a upon m square comma 2a upon m, ठीक है। इन्हों भी हाईलाइट करके लिख लो that coordinates of point of contact will be a upon m square comma 2a upon m if y is equals to mx plus a upon m is tangent to y square is equals to 4ax। आई समझ के नहीं? मेरे ख्याल प्लस टू वाले समझना सौखा होगा, प्लस वन वाले थोड़ा जिहा औखा। डेरीवेटिव एक्चुअल दे विच की हुंदा डेरीवेटिव, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। ਉਹਦੇ ਚ पर्टिकुलर ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ मैं फंक्शन ਨੂੰ डिफरेंशिएट ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ फंक्शन ਨੂੰ डिफरेंशिएट ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2a upon y ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਲੋਪ m ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ m ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ y is equals to 2a upon m ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ m, and for that x is equals to a upon m square, तो मतलब point of contact they will be a upon m square comma 2a upon m, ठीक है। जिवें क्वेश्चन कीता सी वो भी ਆਪਾਂ एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बना लिया, ਇਹਦੇ ਚ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ਆਪਾਂ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ਇਹਦੇ ਚ डायरेक्टली अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो ये तो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ਨੂੰ ਤਾਂ याद कर लेंगे एज इट इज, ठीक है। ਹੁਣ देख वो कहते एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, वो टेंजेंट है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ठीक है। दो चीज़ां पूछ सकते हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस c ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਦੀ टेंजेंट होएगी, सैकेंड अगर वो टेंजेंट है तो वो ਕਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ टेंजेंट होएगी। कंडीशन आप इतने बनाती y इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन n, ठीक है। then if c is equals to a upon m that line will be tangent to the parabola। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ what will be the point of contact, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ dy upon dx फाइंड आउट कर लिया, y स्क्वायर ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਪਤਾ, स्क्वायर ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ 2y ਤੇ y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dy upon dx is equals to x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4a
y डैश ये आ गया, dy अपॉन dx ये आ गया। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। तो 2a अपॉन m ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 2a अपॉन y ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਤਾ m, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ m। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ m ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2a अपॉन m, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ y ਕਿੰਨਾ 2a अपॉन m। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ a अपॉन m ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ a अपॉन m ਸਕੁਅਰ, 2a अपॉन m। ठीक है, तो इनू अगर मैं समराइज करा, जी चीज़ आप हुण तक पढ़ी है कि यह लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c विल बी टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax if and only if c is equals to a upon m and their point of contact will be a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन। ठीक है, ये समरी है जी, आप दो चीज़ा दो क्वेश्चन ही किए, आप कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, कोई इस सच टॉपिक नहीं है ये, आप सिर्फ क्वेश्चन किए हैं तो उन्होंने रिजल्ट ये निकल के आया। ठीक है, जिमें क्वेश्चन आ जाए मेरे को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखो आप पहला क्वेश्चन करते हैं इतने, ये बैटर एप्लीकेशन क्लैरिटी हो जाएगी कि ये चीज़ आप पढ़ी क्यों है। Find the equation of a line touching both y square equals to 8x and x square plus y square equals to 2। x square plus y square equals to 2 की है सर्कल, y square equals to 8x की है पैराबोला, center of circle is 0,0 origin, radius is equals to √2, y square equals to 8x ਦਾ vertex किथे है origin focus किथे है ਉਹਦਾ 2,0, ओरिजिन की फोकस कितने है 2,0। ਹੁਣ अगर अपन ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ, मतलब ये क्वेश्चन ਨੂੰ लिखਣ ਦਾ एक होर तरीका ये भी है फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू बोथ। इवें भी तो पूछ सकता सी क्वेश्चन, मैं ये कहने की बजाय कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज टचिंग बोथ द कर्व्स, मैं लिख सकता सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द कर्व्स। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ ਸਰਕਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਬੋਥ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਪਸ ਲਿਖਣਾ, ਰਾਈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਲੋਪ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ m ਸਲੋਪ ਵਾਲੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y is equals to mx plus a upon m। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y is equals to mx, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 2, so that will be y equals to mx plus 2 upon m। ठीक है, now second condition ਕੀ ਹੋਏਗੀ, make this line tangent to सर्कल, मीन्स अगर कोई लाइन टेंजेंट टू सर्कल है मीन्स डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन फ्रॉम सेंटर शुड बी इक्वल्स टू रेडियस। यही होएगा ना। एक आप पैराबोला की आप फोटो भी बना देने इतने, फोटो की होएगी ए वाली तो ए वाली, आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ए वाली लाइन की इक्वेशन मैं लिख चुका, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2 अपॉन m।
Now this is tangent to circle also, means distance of this line from center of circle will be equals to radius of that particular circle. To make this line tangent to circle means distance of tangent from center is equals to radius. ठीक है, बस ये कितना बन जाएगा, इन्हों मैं थोड़ा जिहा अगर शॉर्ट करा तो की हो जाएगा एम वाई इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0. Now distance of this line from center of this circle कितना 0 0, तो इस लाइन ਦਾ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ that should be equals to √2. ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ m, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ m ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ. ठीक है, तो ਕੀ ਆਏਗਾ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा 0 -0 + 2 अपॉन m4 + m स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट that should be equals to √2. यही होएगा ना. ये अगर आप कैंसिल करिए तो कितना आ गया √2, तो आपको पता लग गया m4 + m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 या m4 + m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. इस तरीके की क्वाड्रेटिक ਨੂੰ बाय क्वाड्रेटिक ਨੂੰ सॉल्व करने का की तरीका ਹੁੰਦਾ, let m स्क्वायर be equals to अल्फा, let m square be equals to alpha, तो alpha square plus alpha minus 2 equals to 0, minus 2 alpha plus alpha minus 2 equals to 0, तो either alpha equals to 2 or alpha is equals to -1. Now m square is equals to alpha means alpha can't be -1, means m square is equals to 2, तो m is equals to ± root. तो there will be two different tangents. गलती तो नहीं की कोई, -2 plus alpha minus 2 एंड इतने कितना बचेगा +1, तो दैट विल बी अल्फा +1. ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 इज एक्सेप्टेबल, तो m की दो वैल्यूज आनी है ±√2, तो मींस रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी y इज इक्वल्स टू √2x + 2 अपॉन √2 और -√2x + 2 अपॉन -√2. देयर विल बी टू डिफरेंट टेंजेंट्स. ठीक है, तो यही चीज़ फॉलो करनी है ਜਦੋਂ भी सर्कल एंड पैराबोला आएगा. जे तुसी इदां शुरू कर दोगे ना कि सर्कल दी मान लो ਇਹਦੀ टेंजेंट लिख के मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैच करवानी शुरू करदा, तो ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ रिजल्ट ਤੇ पहुंचना ही नहीं, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही नहीं कि ਉਹਦਾ सेंटर की है, फोकस की है, डिस्टेंस कितना ਹੁੰਦਾ. पैराबोल सर्कल के केस ਦੇ ਵਿੱਚ पता कि ਜਿਹੜੀ भी टेंजेंट आएगी ਉਹਦਾ सेंटर तो डिस्टेंस कितना ਹੁੰਦਾ इक्वल्स टू रेडियस. फॉर्मूला लावांगे 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर. ओके, ठीक है, लिख लो इधर. डायग्राम बनानी जरूरी है, पहला डायग्राम बना लिया करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछ की रहा अपने तो. तो ये नहीं मैं कहना है कि ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ सिर्फ यही तरीका, 100 तरीके होर होणगे. ठीक है, बट मोस्ट इफेक्टिव अपने को ये है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 स्टैप्स ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर आ जाए. ऊपरों मिटा दो ऊपर. ठीक है, दोबारा फिर अगर आप रिपीट करिए, सुनो इधर, 1 मिनट लिए छड़ दो. y is equals to mx plus c will be tangent to the parabola y square equals to 4ax if c is equals to a upon m. तो equation of tangent will be y is equals to mx plus a upon m. Now y equals to mx plus a upon m will touch the parabola y square equals to 4ax at a upon m square comma 2a upon m. ये तीन चीज़ें याद रख. ठीक है, डेरिवेटिव वाला कंसैप्ट जिवें आपां कीता, हुण लेट अस सपोज मेरे को पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay आ गया, तो फिर आपां नूं एक कंसैप्ट याद है. आपां y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिए क्यों कीता, क्योंकि 99% ऑफ द केसेस दे विच यही पैराबोला आएगा. अगर कोई दूसरा आएगा तो आपां नूं मैथड याद है, आपां ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, लिखो.
Next will be equation of tangent in various forms. सैटरडे टेस्ट होगा दोबारा अपना सर्कल्स का, ठीक है। किन्ना ने नहीं दिता सी उस दिन, कौन कौन ने? प्राची ने नहीं दिता, खुशी ने नहीं दिता, और मंजी का दिता सी टेस्ट उस दिन, जसकीरत तुसी दोनों ने? तू सर्कल्स का ना दोबारा होगा टेस्ट, ठीक है, सैटरडे। चलें आगे, सुनो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म्स, सर्कल्स के लिए याद करो सेम टॉपिक सीगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन वेरियस फॉर्म्स कितनी फॉर्म्स कीतियां सी आपां? 3। किहड़ी सी? पहली पॉइंट फॉर्म, दूजी पैरामीट्रिक फॉर्म, थर्ड स्लोप फॉर्म, ठीक है। याद भी कर लेने आपां। पॉइंट फॉर्म की सी? x(x1 + y(y1) = r²। स्लोप पैरामीट्रिक फॉर्म की सी? xr cos θ + yr sin θ = r²। एंड स्लोप फॉर्म की सी? y = mx + a √1 + m²। सेम थिंग आप इत्थे करांगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन वेरियस फॉर्म्स, फर्स्ट विल बी पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब इफ x1 y1 lies on the parabola, if x1 y1 lies on the parabola, ठीक है। तो आप इत्थे भी उवें टेबल बना देने उस दिन आगो। पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, ठीक है। 4 तरह के पैराबोलाज ने अपने को। y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay एंड x² = -4ay। कंसैप्ट की कहना आपां नूं? कंसैप्ट कहना कि y² लिखिया तो उन्होंने y × y बना दो, 2x लिखिया तो उन्होंने x + x बना दो, या 2y लिखिया तो उन्होंने y + y बना दो। तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की आ जाएगी अपने कोले। फॉर दिस इट विल बी y(y1) = 2ax + x1, y(y1) = -2ax + x1, x(x1) = 2ay + y1, and x(x1) = -2ay + y. These will be the required equations of the tangents if point x1 y1 lies on the parabola, ठीक है। अगर वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो सिंपली की ने दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। सेकंड इज पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। लेट देयर बी द पैराबोला y² = 4ax, ठीक है। मैं लिखने लिए टाइम दे दूंगा, तुम इधर पहला समझ लो, ठीक है। लिखने लिए टाइम दे दूंगा, समझ लो पहला।
let there be a parabola y square equals to 4ax ਆਪਾਂ equation of tangent at x1 y1 ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ y1 is equals to 2ax plus x1 and we know that parametric coordinates of parabola are 80 square comma 280 तो let x1 be equals to 80 square y1 be equals to 2at तो की आ जाएगा 2at into y is equals to 2ax plus 80 square 2a cancel तो ty is equals to x plus 80 square will be the required equation of the tangent in parametric form ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ simple x1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ 80 square y1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ 2at ठीक है तो सिमिलरली अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ so parabola parametric points and equation of tangent ठीक है मान लो तीन चीज़ें ने parabola parametric points and equation of tangent so there could be four parabolas y square is equals to 4ax y square is equals to minus 4ax x square is equals to 4ay and x square is equals to minus 4ay ठीक है जस्ट किरत ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ 80 स्क्वायर 280 ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ y square equals to minus 4ax ਦੇ 80 square minus 280 ठीक है क्यों ऑटोमेटिकली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ 80 square minus 280 ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 280 80 square 280 80 square and this will be 280 minus 80 square ठीक है these are the parametric coordinates simple जी गल्ला ਆਪਾਂ देखिया this will be ty is equals to x plus 80 square ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ माइनस आ जाएगा ty is equals to minus x plus 80 square इधर कितना आएगा tx is equals to y plus 80 square tx is equals to minus y plus 80 square ठीक है these are the four equations of the tangent okay ये किहड़ी होगी पैरामीट्रिक फॉर्म स्लोप फॉर्म आप ऑलरेडी पढ़ ही रखी है ठीक है हुणे हुणे आप की कंप्लीट करके हटे हैं स्लोप फॉर्म ही तो करके आए हैं स्लोप फॉर्म ठीक है तो y is equals to mx plus a upon m is tangent to y square equals to 4ax ठीक है with points of contact as a upon m square comma 2a upon m वो इधर देखो ठीक है with points of contact as a upon m square comma 2a upon m आप इन्हें दूसरी साइड पे भी ले जाते हैं पैराबोला की आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ठीक है कितने पैराबोलाज होंगे चार चारों के चारों पैराबोलाज लिख दें आप y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay and x square is equals to minus 4ay equation of tangent की आ गई यदि y is equals to mx plus a upon m point of contact कितने आ गए a upon m square comma 2a upon m की उल्टा होएगा हुन सेकंड केस दे विच की होएगा इथों तो दिखता अगर पॉजिटिव है तो बस y ਨੂੰ नेगेटिव च लेके जाना ਆਪਾਂ सॉरी x ਨੂੰ नेगेटिव च लेके जाना और तो कुछ भी नहीं इत्थे की कीता सी ਆਪਾਂ 80 स्क्वायर 280 तो 80 स्क्वायर माइनस 280 ये की फर्क आएगा स्लोप नेगेटिव हो जाएगी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी तो मतलब की हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस ए अपॉन एम ठीक है y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस वैसे तो आप करके देख सकते हैं बट फिर भी मैं एक बार चेक कर ला नो स्लोप विल बी सेम स्लोप तो सेम है ना आप m दी लिख रहे हैं इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव पॉजिटिव ते कट रहा सी तो नेगेटिव ते जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए अपॉन
m and its point of contact will be minus a upon m square comma 2a upon m। मैं दोबारा फिर कह रहा है चीज़ें याद करने की नहीं लोड़, बट जो याद रह जाएगियां तो तुम बहुत सौखे रहोगे, ठीक है। एंड इन केस ऑफ x square इक्वल्स टू 4ay दैट विल बी 2am कॉमा am स्क्वायर, ठीक है, 2am कॉमा am स्क्वायर एंड 2am कॉमा माइनस am स्क्वायर, ठीक है। ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू mx प्लस am स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस am स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रहे जी तो ठीक है, अदरवाइज स्टेप्स वही ने, डिफरेंशिएट करो, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट फाइंड आउट करो, फिर कहानी खत्म। देखते हैं, देखो इधर एक बारी सारे आप ट्राई भी दस भी दईए किमें होएगा, ठीक है। मान लो, सुनो इधर, आई हैव टू राइट इक्वेशन एंड पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। मान लो कोई टेंजेंट है जिसकी स्लोप m है, तो इस पैराबोला ਨੂੰ अगर वो टेंजेंट बनेगी तो वट विल बी द इक्वेशन एंड वट विल बी द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। आप कर लें, डिफरेंशिएट किया मैं, एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव 2x इज इक्वल्स टू 4a इंटू वाई डैश, ये गया 2, तो वाई डैश कितना आ गया अपने को x अपॉन a एंड वाई डैश इज इक्वल्स टू m, अपन गिवन है वाई डैश इज इक्वल्स टू x बाय 2a एंड वी नो दैट x अपॉन 2a इज इक्वल्स टू m, तो x कितना आ जाएगा अपने को 2am, बन गई गल 2am, ठीक है। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 2am 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay के प्लस है, प्लस चलन दो, a दे नाल a गया, 4 दे नाल 4 गया, तो y कितना आ गया अपने को am स्क्वायर, बन गई, ये आ गया पॉइंट ऑफ कंटेक्ट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के लिए, ठीक है। Now what will be the equation? Equation will be y minus am square या y minus am square upon x minus 2am is equals to m, ठीक है। तो कितना आ जाएगा y minus am square is equals to mx minus 2am square, तो y is equals to mx माइनस am स्क्वायर, तो इत्थे नेगेटिव ते दूजे दे विच ऑटोमैटिकली पॉजिटिव। समझ आई कि नहीं, ठीक है। कर लो, इनू पहला नोट करो, आप अगे नहीं जाते, इन्हों पहला ऑब्जॉर्व करो, जे किते प्रॉब्लम आई है दोबारा फिर करो, नोट करते करते पूछो, लिख लो। ये नोट करो, बाकी नॉर्मल्स ने जिहड़ियां आपां कल करांगे।